Good morning, plus 2 commerce. So today we will be doing the next topic of chapter 5, that is organizational structure, right? So if you are clear with the meaning of organizing, then you can easily understand this topic. Otherwise it is difficult for you. So when I have explained you the meaning of organizing, I have told you that first of all we have to identify the task, identify the activities, right? And then we have to group them. Okay? Grouping will provide specialization. And along with that we have to establish reporting relationship. And I just hope that you are clear with this term, because it means that you should be knowing that from which person you have to take order and you have to report back to whom, right? So when you are creating this relationship, then two things are automatically created. First is responsibility and second is authority, right? Because there are certain levels in the management. One person will be your superior and the other person will be subordinate. It means one person will has the authority to give you orders because he has the power, and the other person will be responsible to complete the given task on time, right? So when you are clear with the responsibilities, when you are clear with the authority, and when you are clear with the job position, सबको पता है कि कौन किस पोजीशन पे काम कर रहा है एंड एक्चुअल में उसे क्या काम करना है, राइट? सो इट मीन्स तब क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है. So that particular network which gets created because of job positions, responsibilities and authorities at various level of the organization, that network is known as organizational structure, right? So you have to learn this meaning. Clear? Now the next important term which comes in the exam is span of management, right? So what is span of management? It means that how many employees or subordinates who are working under you, means how many employees you can effectively manage, right? आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, means by one manager. That is known as span of management, right? So there are two terms, narrow span of management and wide span. So what do you mean by this? I'll show you one image. Okay, yeah. So tall organizational structure means when the number of employees who are working under you are less, then it will automatically create tall organizational structure. And when the number of employees are more who are working under you, then that will be known as flat organizational structure. As you can see, here is one person, under that two persons are there. Now under this person again two persons are there, and so on, right? But if you see about flat organizational structure, then under this person three employees are there who are working, not one. And again under each person four different employees are working, and under those again number of employees are working, which are increasing. So that creates flat organizational structure. This is narrow, right? And this is wide. Clear? Okay. So you have to learn this thing, right? This meaning is also very important. This is also very important. Now when this span is decided, right, whether you are going for narrow or wide, then automatically what is created, what is developed? Scalar chain. Now you know what is scalar chain and how it is developed, because it clearly specifies that who has to report to whom, right? So this is possible after deciding the span of management. Clear? Now tell me, according to you,
why this organizational structure is important? It's very easy. First of all, because of this structure, because of the network, all the operations of business are done properly, and because of this there will be proper flow of communication, right? If there will be no proper network, then there can never be better flow of communication, and all the activities of the business cannot be properly organized and managed. But if you want the things to get properly organized and with the better flow of communication, then it is very important to go for organizational structure, right? Then because of this reporting relationship, it is very easy to check the responsibility, because we know that which particular employee is responsible. Then we can easily come to know about the working style, right? Whether we are going for like divisional structure or functional, that we will study after this topic. If the organized structure will be there, then coordination and correlation will be there, because we are using so many human resources, physical resources and financial resources. All the things are interdependent, so automatically if the structure is there, then the things will be coordinated. And above all, it is very easy to define the level of management and span of control. If there will be no organization structure, we cannot decide the levels of management. हमें नहीं पता चलेगा कि कितने levels of management है, कैसे बने हैं, क्या span है. अगर हमें स्पैन को जानना कि वेदर इट्स नैरो और इट्स वाइड, देन वी हैव टू गो फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्लियर? ओके, नाउ solve this MCQs on by your own. If you have any problem, please ask me. It's very easy. Now there are two types of organizational structure. I have told you functional and divisional. So what is functional? It's very easy. So when the activities or jobs are grouped keeping in mind the functions of or the job, सिंपल सा क्राइटेरिया है. ग्रुपिंग होना है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही ग्रुपिंग है, एक्टिविटीज़ को करना, राइट? तो अगर हम फंक्शंस या जॉब को देख के ग्रुपिंग कर रहे हैं, देन इट्स फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट? For example, all the jobs which are related to marketing, it will be grouped under the marketing department. Same for the purchase department. Same for the sales department, right? यहाँ पे तो हमने बात करी फंक्शंस के बेसिस पे, राइट? हम अगर ग्रुपिंग चाहें तो हम टेरिटरी वाइज भी कर सकते हैं कि ये नॉर्थ रीजन है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये सेंट्रल है, ये ईस्ट है, ठीक है? तो जब भी हम किसी चीज़ को ग्रुपिंग करते हैं फंक्शंस के बेसिस पे या जॉब के बेसिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर. मेनली इट इज़ रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट जब हम फंक्शंस के बेसिस पे करते हैं, ठीक है? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्टोर डिपार्टमेंट, QC डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, जो कि देखता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, क्या वो क्वालिटी जो आपने रेकमेंड करी है, जो स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन हो रहा है या नहीं. असेंबली डिपार्टमेंट, वेयर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर assembled together, right? And there are so many other departments under the production department, और हर डिपार्टमेंट के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. सो हर डिपार्टमेंट के अंडर एक सब डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो रहा है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट का एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, और वो इस तरह से क्रिएट हुआ है ताकि आपका काम बहुत सिस्टमैटिकली चले. क्लियर? नाउ what are the advantages? Now first is occupational specialization. So basically I have told you that this particular structure ये किस पे फोकस करता है? on specific functions, right? जब ऐसे काम होगा automatically there will be efficiency. Why? Because all the manpower, all the employees, they are performing the same kind of job, so ultimately their performance will improve and they will become specialized in their task. Specialization तभी होती है जब आप एक काम को बार बार करते हो, right? If you want to score 90+ in your boards, then you have to keep practicing your chapter at least 10 times again and again. अगर आप चाहते हो कि आप स्पेशलाइज हो जाओ इस चीज़ में ताकि आपके नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एक ही बार करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि आपके कितने नंबर आएंगे. नेक्स्ट इज
promotes control and coordination within the department, because all the same kind of activities are grouped in the one department in the under the one department only. तो कंट्रोल करना एम्प्लॉय को भी, उसकी एक्टिविटीज़ को भी, काम को भी, राइट, बहुत ईजी हो जाता है। और सुपरवाइज़ करना भी बहुत ईजी है। सुपरवाइज मतलब चेक करना बहुत ईजी है कि काम कैसे हो रहा है, क्योंकि सेम एक्टिविटीज़ एक डिपार्टमेंट में हो रही हैं, कोई क्योर्स नहीं है। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब एफिशिएंसी होती है, ठीक है, आप स्पेशलाइज्ड हो रहे हो, आप सेम काम बार बार कर रहे हो, तो एफिशिएंसी होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो अल्टीमेटली मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी। मैनेजरियल लेवल पे जो आप काम कर रहे हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो भी होगी। तो अल्टीमेटली मतलब कम कॉस्ट है, और कम कॉस्ट है तो पता है आपको कि प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, डुप्लीकेशन ना हो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है ताकि कोई भी काम रिपीट ना हो। तो जब कोई काम रिपीट नहीं हो रहा, एफर्ट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो इट विल रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेस्टेज नहीं होगी, अल्टीमेटली कॉस्ट भी आपकी क्या होगी, कम। आप कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। नाउ यू नो दैट जब हम फंक्शन के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं तो ट्रेनिंग जो है वो फोकस किस पे करेगी, एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे करेगी, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन पे करेगी। तो ट्रेनिंग भी क्या होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। मार्केटिंग वालों के लिए मार्केटिंग ट्रेनिंग, फाइनेंस वालों के लिए फाइनेंस की ट्रेनिंग, राइट। देन द लास्ट इज ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस। जब सबको ग्रुपिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हुई है तो हर किसी को अपनी ड्यू अटेंशन जो चाहिए, जितनी उनको चाहिए वो ज़रूर मिलेगी। डन। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसएडवांटेजेस है, क्या नुकसान हो सकते हैं। फर्स्ट, प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली क्या होता है कि जब अब मैंने जो ग्रुपिंग करी है वो फंक्शन के बेसिस पे करी है, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट्स बन गए हैं तो सबके फंक्शनल हेड बन जाएंगे, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का एक हेड बन जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं, वो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जिसकी वजह से ये क्या डिसएडवांटेज बन जाता है, ठीक है। देन प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। हर कोई अपने डिपार्टमेंट को लेके फोकस्ड है, तो कभी कभी समटाइम्स व्हाट मे हैपन कि वो जो दूसरा देखो डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड, काम आपके इंटर रिलेटेड है, फाइनेंस मार्केटिंग के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं विच आर इंटर रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि आप जो है दूसरे डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी को समझने में झुक जाते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कोऑर्डिनेशन की। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल इफ़ द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ अलाउंग यू टू गो फॉर 10% डिस्काउंट ऑन दी लाइक प्रोडक्ट्स, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो 15 देना है। अब फाइनेंस को बेटर पता है कि कितना बजट है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, कस्टमर्स को इंक्रीज़ करने के लिए 10 नहीं 15 लगेगा। तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट को क्या कर रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हो, वहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट इज़ इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं वो एक ही फील्ड में सोचते हैं, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव जो व्यू पॉइंट है वो एक ही फील्ड में चलता है, उनकी ट्रेनिंग एक ही एरिया में हो रही है, उनका जो स्किल स्पेशलाइजेशन हो रहा है वो एक ही फील्ड में हो रहा है, और हम उनको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। आई कैन नॉट ट्रांसफ़र द मार्केटिंग पर्सन इन दी फाइनेंस। सो कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए, क्योंकि उनको अगर आपको टॉप लेवल पे जाना है तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको हर फील्ड का चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। देन एट दैट पॉइंट इट इज़ अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो मैंने आपको भी पॉइंट बताया कोऑर्डिनेशन का, ये सेम है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इंटरेस्ट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। सेल डिपार्टमेंट ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन डाल देता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज़ और प्रोडक्शन की कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, डिपार्टमेंट वाइज इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम लेके आ सकता है। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। नाउ अगर आपका ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो आपको लगता है
एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कहेगा कि नहीं सर सॉरी मेरी वजह से हुआ है, सेल्स वाले कहेंगे मेरी वजह से हुआ है, मार्केटिंग वाले कहेंगे नो, हर कोई एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू हो जाता है। अगर आपकी क्लास में शोर है और कोई टीचर नहीं है, अचानक से कोई टीचर है तो आप क्या कहोगे? जब टीचर पूछेगा कि शोर क्यों हो रहा है, आपको कहेंगे ये शो कर रहा था, वो शो कर रहा था, कभी आप कहोगे कि मैडम मैं कर रहा था, नहीं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे होता है। तो हम अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है कि एटलीस्ट किसको ब्लेम करें, जो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन गोल के अगेंस्ट किया था। ठीक है, वन एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो ब्लेम कर सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि पुअर क्वालिटी दी आपने, पुअर क्वालिटी बना के दी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे जाके परचेज डिपार्टमेंट को बोल सकता है कि आपने रॉ मटेरियल अपने अच्छी क्वालिटी का नहीं दिया था। ठीक है, तो ऐसे चलते चलते हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम डालना शुरू कर देता है। तो एट दैट पॉइंट इट बिकम्स अ डिसएडवांटेज। क्लियर? So you can see that there are number of departments. I can show you. Okay, so this is, just wait. Okay, yeah, so under production, processing, wait, okay, processing, quality control, repair maintenance, marketing अंदर advertising, sales, customer service, research, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग जो कर रहे होते हैं हर चीज़ को लेके, उसका डिपार्टमेंट होता है। परचेज़ के अंडर, ओके, सो परचेज़ जो रॉ मटेरियल को करते हैं उनका अलग डिपार्टमेंट होता है। जो इनपुट्स करते हैं, इनपुट परचेज़ करते हैं उनका अलग डिपार्टमेंट होता है। जो रिकॉर्डिंग करते हैं हर परचेज़ की उनका अलग डिपार्टमेंट होता है। सो देयर आर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स विच आर दी सब डिपार्टमेंट्स ऑफ द मेन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे मेन डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, अब सूटेबिलिटी की कहाँ कहाँ सूटेबल है। अगर तो आपको काम चाहिए फंक्शन के बेसिस पे, अगर आपको हर फंक्शन में स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगर आपको सिमिलर नेचर का काम चाहिए, या फिर अगर आपको वन प्रोडक्ट ही मेंटेन करना है, आपकी कंपनी एक ही तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, देन यू कैन ईजिली गो फॉर द डिविजन दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, बट इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी लार्ज एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इवन इफ देर 2, 3, 4, 5, राइट, सो वहाँ पे आपको कौन सा स्ट्रक्चर सूट करेगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर? ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ऑब्वियसली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऑफ दी वन टाइप रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो हम एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, जो कि क्या लेके आता है? कोऑर्डिनेशन लेके आता है, सब काम मिलके होते हैं, सिस्टमैटिक वर्किंग है, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन अच्छे से होती है। इफ़ देयर 3 डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एक कॉस्मेटिक्स का है, एक बैग्स का है, एक फुटवेयर्स का है, तो कॉस्मेटिक्स वाला काम अपना करेंगे, उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन है, बैग्स वाले अपना करेंगे, उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन है, एंड द थर्ड वन वो अपनी करेगा, उसकी अपनी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेटेड। जब आप डिपेंड ही नहीं कर रहे हो दूसरे डिपार्टमेंट पे, तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजंस आप लोगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट लोगे, बिकॉज कोई डिले ही नहीं हो रहा, डिले का कोई रीज़न ही नहीं है। सो इन दैट वे इट बिकम्स एन एडवांटेज। अकाउंटेबिलिटी इसमें फ़िक्स करना ईजी है, क्योंकि हम ईजिली चेक कर सकते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस, और जिस डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं काम किया उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, ये ऑब्जेक्टिव आपकी वजह से, आपके डिपार्टमेंट की वजह से पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर आप डिसीजंस ले रहे हो विच आर अलाउड, क्योंकि कोई डिले नहीं है डिसीजंस में, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ठीक है, आप इजीली डिसीजंस ले सकते हो। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब सपोज कि आपके 3 डिपार्टमेंट से अब आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हो साइड बाय साइड, और जो पुराने चल रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू दी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स, आप जितने मर्जी न्यू ऐड कर लो। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अब क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है तो रिसोर्सेज भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि हर कोई क्या करेगा? अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही फोकस करेगा, और वो भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना, हम तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। लेकिन ऐसा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है
झगड़ा तब हो सकता है जब आप एलोकेट कर रहे हो रिसोर्सेज को, क्योंकि रिसोर्सेज तो तीनों प्रोडक्ट्स को चाहिए, राइट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वट एवर, लेकिन एलोकेशन में जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कोई ये ना कहते कि उसको ज़्यादा दिया है, हमें कम दिया है, हमें इस क्वालिटी का दिया है, उनको वैसे क्वालिटी का दिया है। सो देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ लास्ट डिसएडवांटेज इज इंक्रीज इन कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट हर हाल में इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हर डिवीज़न को अपना अपना काम करना है, ठीक है। हर डिवीज़न अपने अपने सिमिलर जो उनके फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे काम कर रहे हैं। डिवीज़न मतलब जो मैंने आपको बताया, एक कॉस्मेटिक्स का है, एक बैग्स का है, ठीक है, एक फुटवेयर्स का है। तो कहीं ना जब हर कोई, अब 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो इस पर खर्चा भी ज़्यादा होता है क्योंकि हर किसी को उतने ही रिसोर्सेज चाहिए, राइट। सो इट कैन लीड टू इंक्रीज इन दी कॉस्ट। सूटेबिलिटी कहाँ है इसकी? अगर तो आपको जाना है फॉर डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, आप अगर आपकी कंपनी एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, यू कैन ईजिली गो फॉर दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में जाना है, मोर देन वन, देन यू हैव टू गो फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर। देन अगर आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, अगेन देन यू हैव टू गो फॉर द डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, सो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये चाहती है कि जितने भी डिविजन्स हैं वो सेल्फ कंटेन्ड हो, ठीक है, मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो, तो उसके लिए भी उसको क्या चाहिए, वही बात होगी कि अगर आपको डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए जाना है, देन अगेन डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर आप और लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स आपको लगता है कि आप एक्सपेंड कर सकते हो, आप और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो, इन फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है, तो मतलब ग्रोइंग कंपनीज़ की बात हो रही है, तो वो ऑब्वियसली वो भी किसके लिए जाएंगी, डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए ही जाएंगे, ठीक है। नाउ इन द एग्जाम व्हाट कैन हैपन दैट द केस स्टडीज कैन कम फॉर 4 marks, 5 or 6, one case will be there and they will be asking you identify the type of structure, fine, organization structure. So either it will be this functional or divisional. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये होगा कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड देन टेल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चाहे आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आते भी हैं, लेकिन अगर हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर गलत बता दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर these kind of questions. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस जब भी आएगा एग्जाम में, आपने बेसिस लिखने ही लिखने हैं। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये फंक्शन के बेसिस पे है, ये प्रोडक्ट के बेसिस पे है, इस पर हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, इसमें ठहरा सकते हैं। इसमें कम रिसोर्सेज हैं तो इकोनॉमिकल है, इसमें ज़्यादा है। इसमें जो है लेस चांसेस हैं कि किसी मतलब कोई अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरी डेवलपमेंट, मेरी ग्रोथ कम होगी क्योंकि मैं एक ही चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो रही हूँ, ज़्यादा में नहीं। लेकिन यहाँ पे बिकॉज मल्टी फंक्शंस हैं तो मैं कर सकती हूँ। ये फंक्शन स्पेशलाइजेशन लेके आती है, ये प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन लेके आ सकती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कम है, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन है क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एक प्रोडक्ट को लेके वो एक डिपार्टमेंट के अंडर ही है। ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस मींस लाइक फ्रीडम, तो यहाँ पे आपके पास इतना फ्रीडम नहीं है, पर यहाँ पे है। सूटेबिलिटी, ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आप मल्टी प्रोडक्ट मतलब मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के लिए जाना चाहते हो, देन डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ मोर एप्रोप्रिएट। क्लियर?